చేదిక బోధరూప. पुरुषोत्तमः माधवो माधवो माधवः सर्वेश्वरः श्रीहरिः. Wishing you a blessed morning with devotion. It is a privilege to welcome you all to this captivating morning where mythology meets the grace of dance. We welcome to the 22nd annual day celebration of the Padma Shri Shankar Bapu Ambedkar English School. Today we are here to witness the spectacular depiction of the Dashavatar, the 10 divine incarnations of Lord Vishnu, the preserver and the protector of the universe. Through the avatars, Lord Vishnu descended to earth to restore balance, destroy evil and protect dharma. Each incarnation carries profound lessons and symbolizes the good triumph of good over. From serene ocean to mighty mountains, from wisdom to valor, each avatar has a unique story to tell. So sit back and prepare yourself for a divine journey through the magnificent Dash Avatar, brought to the life by our talented performers. Let the story begin. In the eternal cycle of creation, preservation and destruction, Lord Vishnu, the preserver, has taken 10 avatars to restore balance and order to the universe. And so, Lord Vishnu's 10 avatars remain an eternal testament to his unwavering commitment to preserving the universe and upholding the principles of Dharma. Get ready for a dance performance that will light up the stage. Let's welcome them. Om Shanti 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 Om Vishnave Namaha Shanti Shanti Shanti.
बहता पानी, चलती हवाएं, चमके सूरज, रात सुहाए। गाते पंछी, खिलते पौधे, झूमे बादल, मस्त फिजाएं। क्यों बहते हैं, क्यों चलते हैं, क्यों बहते हैं, क्यों चलते हैं, क्यों फिरते और गाते हैं। इन्हें जिंदगी देने वाला कौन है, हाँ कौन है इसका पालनहार। नारायण के वरद हस्त से चलता जाए ये संसार। नारायण के वरद हस्त से चलता जाए ये संसार। प्रकृति धारा को किसी विकृति ने ललकारा, पर इस प्रकृति धारा को किसी विकृति ने ललकारा। धर्म का सूरज लगा डूबने, घिर आया जब अंधियारा। तब तब क्षीर सागर से उठ कर करने सृष्टि का उद्धार। तब तब क्षीर सागर से उठ कर करने सृष्टि का उद्धार। श्री विष्णु ने युगों युगों से लिया है, हाँ लिया है धरती पर अवतार। ओम मत्स्य रूपाय नमः। ओम मत्स्य रूपाय नमः। Ladies and gentlemen, as we begin our journey through Dashavatar, let us start with the very first avatar of Lord Vishnu, Matsya, the fish incarnation. In this form, Lord Vishnu descended to earth to save not just humanity but also the sacred Vedas, which was stolen by an asura named Hayagriva, who lived at the bottom of the ocean. The story tells us about King Satyavrata, who was a great devotee of Lord Vishnu and was blessed with the darshan of Lord Vishnu as a small fish. Do you know, Avanti? That small fish grew into a mighty form, Supreme Lord, guiding the king's boat and protecting seeds of life and spiritual knowledge during the great flood. When the flood was over, the Lord killed the demon and returned the Vedas to Lord Brahma. Matsya reminds us the importance of protecting knowledge and sustaining life even amidst chaos. Now let us witness the tale of Matsya Avatar come to life through this mesmerizing performance. Please give a big round of applause as the story unfolds on the stage. मत्स्य अवतार। प्रचलित युग का अंत समीप था। भगवान विष्णु ने सोचा, प्रलय के लिए अब कुछ ही दिन बाकी हैं। मेरे भक्तों को बचाकर अगले युग में जाने के लिए मुझे कुछ करना होगा। तभी उन्होंने देखा कि उनके एक परम भक्त राजर्षि सत्यव्रत अर्घ्य दान कर रहे हैं। जैसे ही सत्यव्रत ने अर्घ्य देने के लिए पानी हाथ में लिया, ओ बेचारी मछली, घबराओ मत, मैं तुम्हें वापस नदी में छोड़ देता हूँ। मुझ पर दया करो राजन, मुझे फिर से पानी में मत फेंको, वहाँ अन्य मछलियाँ मुझे खा जाएंगी। कोई बात नहीं, डरो मत, मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा। उन्होंने उस मछली को कमंडलू में रखा और वापस अपने आश्रम ले गए। उस रात वो मछली बढ़कर कमंडलू के आकार की हो गई। सत्यव्रत ने उस घड़े को आश्रम के नजदीक एक तालाब में खाली किया। वो मछली तालाब में चली गई, लेकिन कुछ ही क्षणों में वो मछली बढ़ती गई और पूरा तालाब भर गया।
परेशान हुए सत्यव्रत ने उसे महासागर की ओर ले जाने का निर्णय लिया, लेकिन अब उनके मन में शंका जाग उठी। कौन है आप? कहीं आप क्षमा कीजिए भगवान विष्णु। और सत्यव्रत उस मछली के आगे नतमस्तक हो गए। सत्यव्रत, आज से 7 दिन बाद महासागर में प्रलय आ जाएगा और तीनों लोग जलमय हो जाएंगे। मैं तुम्हारे लिए एक नौका भेजूंगा। उस दरमियान तुम नए युग में प्रवेश करने के लिए अपने साथ कुछ बीज, वनस्पति और प्राणी इकट्ठा करो। फिर सप्तऋषियों के साथ इस नौका में बैठ जाओ और मेरी प्रतीक्षा करो। और हाँ, नागराज वासुकी को साथ लेना मत भूलना। 7 दिन बाद विशाल बादल इकट्ठा हुए और धुआंधार वर्षा प्रारंभ हुई। महासागर की लहरों ने विशाल रूप धारण करके जमीन को निगलना शुरू कर दिया। वो देखो, वो रही हमारी नौका, जैसा भगवान ने वचन दिया था। तैयार रहो। जैसे ही वो नौका किनारे लगी, सत्यव्रत ने सप्तऋषि, कुछ गिने चुने प्राणी और वनस्पतियों के साथ नौका में प्रवेश किया। उसकी नौका महासागर की विराट लहरों पर उछलने लगी। उसी वक्त अचानक उन्होंने देखा कि एक बड़ी सुनहरी मछली उन्हीं की तरफ आ रही है। उसके सर पे एक सींग था। जल्दी करो, वासुकी की रस्सी बनाकर तुम्हारी नौका को मेरे सींग से बांध देना। डरो नहीं, तुम सब लोग सुरक्षित रहोगे। इस प्रकार भगवान श्री विष्णु ने अपने भक्तों को प्रलय से बचाया ताकि वो सर्वोच्च ज्ञान अगले युग में ले जा सकें। अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरिं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे।